Dear students, in this class we will discuss the concept of function. A function is a special type of relation. It means all the relations are not functions. Some selected, some special relation is called a function. और कौन से selected relation function बोले जाएंगे? Let us discuss. In which every element of set A, जिसमें set का A का हर element की one and only one केवल और केवल एक इमेज होगी सेट बी में. To understand it, let us take one example. I will take one relation that R equals to x comma y. This is ordered pair such that x plus 2 or x plus 2 equals to y, and whereas x and y both belongs to natural number set. And instead of A or B, I have taken set of natural numbers. Let us understand it by taking mapping diagrams. This is set of natural numbers. Instead of A, I have taken set of natural numbers. And in place of B, I have also taken set of natural numbers. And relation is what? Y equals to x plus 2. And this is set of natural number 1, 2, 3, 4, 5 up to so on. Right here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to so on. You put x as 1 here. जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे 1 plus 2 3, you are getting the output 3. And when you put x as 2, so 2 plus 2 4, 3 with 5, 4 with 6 and 5 with 7. You see, image of 1 is 3, image of 2 is 4, image of 3 is 5, image of 4 is 6 and image of 5 is 7. And you see this definition, no? That relation is called a function in which every element of set A. You see, in this set every element will give you one output. कोई स्टूडेंट मुझे ये नहीं बोल सकता कि सर he has put x as one of the natural number of this world and he is unable to get the output which is not available in this set. दुनिया के उस हर रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हों. ऑक्यूपाइड का मतलब x के प्लेस पे यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ दिस सेट और आपके पास कुछ आउटपुट आएगी एज y. वो आउटपुट इसमें शामिल होनी चाहिए यानी कि इन सेट बी. एंड सेकेंड कंडीशन, every element of set A has one and only one image in set B. It mean if you put x as 1 you are getting 3. आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि you put x 1 once again you are getting 4. यानी कि 1 पुट करने पे 3 भी आ रहा है और 1 पुट करने पे 4 भी आ रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ अ फंक्शन. एंड वन एंड ओनली वन इमेज डज नॉट मीन कि ए सेट के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की केवल और केवल डिस्टिंक्ट इमेज हो. ऐसा भी हो सकता है फॉर टू डिफरेंट इनपुट्स वी कैन गेट वन आउटपुट बट वी कैन नॉट गेट डिफरेंट आउटपुट्स ऑन सेम इनपुट. यानी कि सेम इनपुट रखने पे टू आउटपुट्स नहीं आएंगी. हाँ, ऐसा हो सकता है कि टू डिफरेंट इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ जाए. इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस टेक सेकेंड एग्जांपल. And here I'll take a relation R. Here I'll take R1 because R I have written over there. And this is x comma y such that I'll write here y equals to x squared and each x and y belong to set of integers and that represents set of integers. I represent with the help of mapping diagrams. This is set of integers and also set of integers. I represent few integers in it, -1, 0 and +1 up to so on, and here as well as -1, 0, 1, 2, 3 up to so on. You see, you put x as -1. -1 whole squared equals to +1 and 0 squared equals to 0.
1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 एंड ओनली 1 का मतलब ये नहीं है कि ए सेट के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की केवल डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है, हाँ, 2 इनपुट्स आर देयर, वी कैन गेट 1 आउटपुट, बट 1 इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट्स नहीं आएंगी। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सर ही हैज़ पुट एक्स एज -1, आउटपुट 2 आई, और -1 पुट करने पे आउटपुट 1 भी आ गई। It cannot happen in this case. It is not a case of function. And in this case also, all the elements of set A are occupied. इसका बोलने का मतलब आप x के प्लेस पे कोई भी इंटीजर रखने पे आपको जो आउटपुट आएगी, I mean y, वो इस सेट में अवेलेबल होगा। लेट्स सी, आप दुनिया के किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे, आपके पास इंटीजर ही आएगा, that is available in this set. So we can say that relation is a function in which A set के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए, एंड कंडीशन सेकेंड, हर एलिमेंट की केवल एक इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब 2 डिफरेंट इनपुट्स पे 1 आउटपुट हो सकती है, बट 1 इनपुट पे 2 डिफरेंट आउटपुट्स नहीं हो सकती। सो दिस इज द केस ऑफ फंक्शन। नो आई हैव रिटन few relations at board. You have to check which are functions. Let's see first relation A, 1, 2, second ordered pair 2, 3, 3, 4 and 1, 5. What is the meaning of these ordered pair? कि 1 इनपुट रखने पे 2 आउटपुट, 2 इनपुट रखने पे 3 आउटपुट, 3 इनपुट रखने पे 4 आउटपुट एंड 1 इनपुट रखने पे 5 आउटपुट। एंड यू सी, आप बोलोगे सर इन दिस ऑर्डर्ड पेयर आपने 1 इनपुट रखी और 2 आया, और 1 इनपुट रखे और 5 आया। अब लोगे सर 1 रखने पे 2 भी आया और 1 रखने पे 5 भी आया। सर इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर, इफ इन एनी रिलेशन, if any two distinct order pairs will have first elements are same, then it is not a function. यानी कि अगर किसी रिलेशन में कोई ऐसे 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स आपको मिल गए जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं, इट मीन दैट इज नॉट अ फंक्शन। यू सी, आई हैव सीन हियर 2 ऑर्डर पेयर्स, दिस एंड दिस, फर्स्ट एलिमेंट्स आर सेम, इट मीन्स 1 रखने पे 2 भी आएगा और 1 रखने पे 5 भी आएगा। 1 इनपुट पे 2 डिफरेंट आउटपुट, दिस इज नॉट अ केस ऑफ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन, इट इज नॉट अ फंक्शन। यू सी, 1 अपने इनपुट दी, 2 आउटपुट, 3 रखने पे 4 आया एंड 5 रखने पे 6 आया, एंड देर आर नो एनी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स सो दैट जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, सो इट इज अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। 5 पे 2, 1 पे 2, 5 पे 3, यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर मिल गए जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। होप सो you have understood the concept of function.